Ladies and gentlemen, pollution in Delhi NCR is changing the way we live. The first half of November, when the smog descends, we stop stepping out. We stop going for walks. Or if we can afford it, we simply fly out of the city. I did for 3 days, but I had to come back. We send our elderly parents and asthmatic children to where the air is clean. We learn to accept band-aid measures like odd and even though we know that they are optics. We hope in hell that even if it is making 1% of a difference, let's try it. Today, parents in Delhi were thrust with another set of optics. School winter breaks in Delhi are being replaced with a pollution break. It starts tomorrow and goes on till November 18th. Since the Delhi government failed to protect our children, now the children must protect themselves by not going to school. And there are more optics on the way, by the way. Artificial rain. The government tells us that on November 20th or 21st, they will try and induce rainfall in Delhi to wash out pollution if the Supreme Court agrees. The Supreme Court yesterday had hauled the Aam Aadmi Party governments in Delhi and Punjab over hot coal. They said stubble burning has to stop, that it is murdering people. Today, the National Green Tribunal wanted to know why stubble burning in Punjab was still underway despite a ban on it. Punjab says farm fires have come down by 35% compared to last year. Those are the numbers they gave the Supreme Court yesterday. But that data on your screens, ladies and gentlemen, falls flat every time you look at the Delhi NCR sky. Just look up and you know that the data isn't telling you the entire truth. At this point of time, just pause the sound and fire and fury and ask a very basic, simple question. If year after year, Punjab's farm fires are impacting the lungs of Delhi's children, why can't they be stopped? Is there no alternative to stubble burning? There is. We'll talk about that. The Punjab government on its own has given two solutions to the Supreme Court. One, they say, phase out paddy cultivation. The stubble burning we see is essentially to clear the stubble to the harvested paddy. Let's put out pictures of stubble burning on our screens right now. Rice is the biggest crop in Punjab, and it is grown across 32 lakh acres. Let me repeat that number for you. Rice is the biggest crop that is grown in Punjab, and it is grown across 32 lakh acres. The suggestion is that MSP for rice be scrapped, and instead, MSP should be given to grow alternate crops like millet. To cut a long story short, says the Punjab government, and the Supreme Court agrees with them, if there is no paddy, there will be no stubble, and then there will be no stubble burning either. There is another suggestion. The other suggestion is to give farmers machines for free, machines that weed out stubble and eliminate the burning sensation altogether. The problem here is the cost. The suggestion is that Punjab bears 25% of the cost, Delhi bears 25% of the cost of these machines, and the central government bears 50% of the cost. Question is, can it be done? And why is it that despite government bans and Supreme Court bans and so much bad press, Punjab and its farmers have still not been able to douse their farm fires? Today, I want to speak about the solutions. For the last 7 days, we have been talking about the pollution in Delhi. The Supreme Court seems to believe that at least in November, a majority of this pollution is courtesy Punjab's farm fires. So there needs to be an alternative to stubble burning in Punjab. What is that alternative? Is what the Supreme Court suggesting or the Punjab government suggesting workable? Vijay Sardana is an agricultural economist. He is joining us on the broadcast. Devendra Sharma is again an agricultural economist joining us on the broadcast. And Abhimanyu Kuhad is a farmer leader from Punjab. He is joining us on the broadcast. I think it's only proper that we go to Abhimanyu
hard right now. अभिमन्यु, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर सर्दी, खास करके जब नवंबर आता है, तो दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए पंजाब के किसान जो हैं सबसे बड़े विलेन बन जाते हैं। और सवाल यही बार बार उठता है, और ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्यों पंजाब के किसान डिस्पाइट ऑल द बैन्स इन द वर्ल्ड इस तरह की आग, स्टबल बर्निंग करते रहते हैं। देखिए मैम, सबसे ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और मुझे उम्मीद है आप मुझे बोलने के लिए प्रॉपर समय देंगी। एक बात और यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है कि 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो किसान पराली नहीं जलाएगा उसको स्टेट गवर्नमेंट 100 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देगी पैडी के ऊपर। उन्होंने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट किया था, लेकिन 2019 से 2023 में आ गए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, हरियाणा गवर्नमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने किसानों को इस तरीके का कंपनसेशन नहीं दिया। दूसरी जो चीज है जो हमें प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा वो ये है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पिछले 1.5-2 महीने में 8 बार हमारे जो पंजाब के जो हमारे साथी हैं, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो जो हमारे साथी ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब के, उन्होंने 8 बार रिटर्न में भटिंडा डीसी को ये कहा कि आप हमें बेलर मशीन दीजिए ताकि स्ट्रॉ का, पराली का ठीक तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके। 8 बार रिटर्न में दिया हुआ है, लेकिन 8 बार रिटर्न में देने के बावजूद भी किसानों को भटिंडा में बेलर मशीनें नहीं दी गई। दूसरा जो एक मशीन आती है सुपर सीडर, जो डायरेक्ट सोइंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो काफी हद तक कामयाब है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर हम हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, जितने फार्मर्स सुपर सीडर मशीन के लिए अप्लाई करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, चाहे पंजाब स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हो, वो मात्र 10% फार्मर्स को ही सब्सिडी देते हैं। एक 8 फुट का जो सुपर सीडर आता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उसकी जो एवरेज कीमत है वो लगभग 2.5 लाख रुपया है और गवर्नमेंट 1,05,000 रुपए की सब्सिडी देती है, लेकिन वो मात्र 10% फार्मर्स को देती है। तो यदि जितने भी फार्मर्स सुपर सीडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिससे वो डायरेक्ट सोइंग कर सके अपनी गेहूं की फसल की, उनको प्रॉपर तरीके से अगर सब्सिडी दी जाए तो किसानों को फायदा होगा। और जहां तक आप बात एनजीटी की कर रहे हैं, एनजीटी का हमें पूरा फैसला पढ़ना चाहिए, हम उसका सिर्फ एक पार्ट पढ़ रहे हैं। एनजीटी ने अपने फैसले में यह कहा कि जो 2 एकड़ तक के किसान हैं उनको सरकार फ्री में मशीन मुहैया कराए, जो 5 एकड़ तक के किसान हैं उनको 5,000 रुपए की मदद दी जाए, जो 5 एकड़ से ज्यादा के किसान हैं उनको 15,000 एकड़ तक की मदद दी जाए। और उसके बावजूद यदि कोई फार्मर, ये मदद देने के बावजूद यदि कोई फार्मर स्टबल बर्निंग करता है तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारा ये कहना है, ये सरकार कार्रवाई पे तो पहुंच जाती है, लेकिन क्या जो पहले जो एनजीटी ने बातें कही, क्या उन्होंने उनको इंप्लीमेंट किया? अभी हरियाणा में स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि जो किसान पराली नहीं जलाएगा वो अपनी वीडियो डाले पोर्टल के ऊपर जो गेहूं की बिजाई की तैयारी की, और उसको हम 1,000 रुपया प्रति एकड़ का कंपनसेशन देंगे। क्या हरियाणा में किसानों को कंपनसेशन मिला? और एक आखिरी बात मैं ये मेंशन करना चाह रहा हूं, ये बहुत जरूरी बात है। देखिए, जो 1509 वैरायटी है या पीआर वैरायटी है, उनकी जो हार्वेस्टिंग है धान की, वो सितंबर के लास्ट वीक में मैम शुरू हो जाती है। 15 अक्टूबर तक तो मोटा मोटा 1509 और पीआर वैरायटी की धान की हार्वेस्टिंग खत्म हो चुकी होती है, लेकिन अक्टूबर के स्टार्टिंग में तो दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होता। ये त्योहारों का सीजन आने के बाद ही पोल्यूशन क्यों होता है? अगर आप ये आंकड़ा उठा के देखें कि त्योहारों पे कितने बम पटाखे छुड़ाए जाते हैं, कितने पुतले जलाए जाते हैं दिल्ली के अंदर का, अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो वो बड़ा हैरान करने वाला आएगा। और 2021 में तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि किसानों के कारण तो मात्र 3 से 4% ही पोल्यूशन हो रहा है, बाकी पोल्यूशन है वो जो अनऑथोराइज्ड जो फैक्ट्रियां चल रही है। आप दिल्ली एनसीआर में चलिए, हमारे साथ, हम रोजाना फील्ड में रहते हैं, किसानों के कामों को लेके इतनी अनऑथोराइज्ड फैक्ट्रियां चल रही है जिनका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन किसान को जानबूझ के विलेन बना दिया जाता है, क्योंकि किसान एक सॉफ्ट टारगेट है, किसान भोला भाला, इसलिए उसके ऊपर टारगेट कर दिया जाता है। ठीक है अभिमन्यु, मैं 2 चीजों पे मैंने आपकी पूरी बात सुनी एंड मैं चाहती थी कि हमारे व्यूअर्स किसानों से भी सुने, क्योंकि किसानों की भी मजबूरियां हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है दैट ऑल द पॉलिसीज सीम टू एग्जिस्ट ऑन पेपर, यानी कि ये जितनी पॉलिसी, पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पॉलिसीज बनाने में तो बहुत नंबर 1 है, लेकिन ये सारी जो है कागजी पॉलिसीज हैं, एक्चुअली ग्राउंड में इनका इंपैक्ट दिखता नहीं है क्योंकि इंप्लीमेंट होता नहीं है। तो ये जो आप बात
बोल रहे हैं कि सरकारें प्रॉमिस तो दुनिया भर की चीजें करती हैं किसानों को, लेकिन जब देने का मामला आता है तो देती कुछ नहीं है, इसलिए फार्मर्स डोंट हैव अ चॉइस बट टू बर्न देयर स्टबल। लेकिन दो जगहों पे मैं आपको फैक्ट चेक करना चाहूंगी। सबसे पहले अभिमन्यु, दिल्ली का जो पर्यावरण है, वातावरण है, प्रदूषण है, 7 दिन हो गए हैं, यहां की हवा ऐसी है कि बच्चे सांस नहीं ले सक रहे हैं। दिवाली आई नहीं है अभी तक। द स्मॉग सीजन हैज सेट इन बिफोर दिवाली। डेटा और सरकार का डेटा हमको यह बता रहा है कि इस समय नवंबर के महीने में 27% दिल्ली का जो प्रदूषण है वो फार्म फायर्स की वजह से आता है, खासकर कि पंजाब फार्म फायर्स की वजह से आता है। तो ये तो पंजाब के फार्मर नहीं कह सकते कि हमारी वजह से कुछ नहीं होता। फैक्ट इज कि अगर आप स्टबल बर्निंग करेंगे, उसकी जो हवा है, पॉइजनस हवा है, वो दिल्ली तक पहुंचती है, एनसीआर तक पहुंचती है और उसकी वजह से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता है। वो आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपकी बात भी मैंने सुनी और जो आप कह रहे हैं उसमें दम है कि योर सरकार लेट यू डाउन। देवेंद्र शर्मा, as I said, the Supreme Court yesterday has spoken about all these policies existing on paper, but there has been a solution that has been offered as well in the Supreme Court. I want to ask you whether the solution of disincentivizing growing of paddy and giving MSP for growing millets instead is a solution, given how much paddy Punjab grows. Very amused to listen that of this suggestion that paddy needs to be stopped immediately, and the suggestion that you replace it with millets and give it to MSP. I think people who talk about it or who have talked about it, the Supreme Court also, I think, have no idea as to what the realities are of the farm. Having said that, I think it is very important to understand that first, let me correct also when you said earlier that Punjab has 32 lakh acres under paddy. Let me correct you, it was 32 lakh hectares, which means 2.5 times more. Hectares, I beg your pardon. Punjab produces about 220 lakh tons of stubble every year. 220 lakh tons is a huge volume. I don't think people sitting in Delhi can even comprehend, or sitting anywhere can comprehend what this volume is about. And 220 million tons has to be addressed. If you leave it to government or to the private sector, they cannot do it. It has to be left to the farmers, and farmers of Punjab are saying कि हम कर देंगे, हमें आप थोड़ा सा इंसेंटिव दे दीजिए. That is what they are saying. And the Supreme Court, as Mr. Abhimanyu Pahar said earlier, in 2019 had itself said give farmers 100 rupees per quintal extra as an incentive, and they will take care of it. But Supreme Court didn't even follow its own recommendation or its own suggestions. But the point I'm trying to make is, even today, but the debate that I'm looking, I think, is we are lost somewhere. We are confused. We don't even know the realities of Punjab. It is easy to blame farmers for anything that happens in this country, whether it's water shortage or whether it is the air pollution in New Delhi. I'm so happy that Maharashtra farmers at least don't produce that kind of paddy that Bombay can blame them. Now, having said this, I think let's be very clear that what we need is, and what the farmers have been saying. Let me look at Haryana first. Haryana gives 100 rupees per acre as the relief or incentive to the farmers. It covers, if you look at the portal that Haryana government has, 940 lakh acres is what the people have applied for in that area to get 1,000 rupees. Even they don't get it timely, but still they have applied. Now, that is exactly what the farmers are saying. Amrinder Singh, Captain Amrinder Singh, when he was the chief minister, he said that. He said, give us 2,000 crore rupees to the center and we will take care of it, because farmers are saying कि आप हमें ये पैसा दे दीजिए, इंसेंटिव दे दीजिए, हम इसको कर लेंगे और हम इन सिटू करेंगे. We will not burn it, but we will try to seek इसका, जिसको कहते हैं ना कि whether by mulching or by replowing or whatever it is, whether we employ farm labor or we employ मनरेगा labor or whatever, farmers claim कर रहे हैं कि हम कर सकते हैं. Now, why is it that the center is dilly-dallying for the last 5, 6, 7 years that at least I have seen, and I see no reason कि सेंटर को उसमें ये डिले करना चाहिए. अभी जो भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई 25% पंजाब देगा, 25% सेंटर दिल्ली देगा एंड 50% सेंटर को देना चाहिए. He asked for 1,500 crore rupees. Now, what is wrong? Why can't the government do that? Then you are talking about machines. Well, let's look into the machine case also.
There are 1,37,000 machines that are operating in Punjab to manage this stubble. 1,37,000 machines which are used only for 3 weeks. And for the rest of the year, they're lying in the field, which means Punjab is going to become or it has already become a junkyard for farm machines. What will you do with these machines in a couple of years from now? And when we were talking about introducing Happy Seeder machine in the very beginning, I remember that at that particular time, everyone was saying that, if you give 90% subsidy on Happy Seeder machine, the problem will be solved. Even New York Times did an article like that. And I challenged that article even at that time. Now look at it today. Happy Seeder, 14,000 machines are lying idle. Farmers don't use it. Because every year the university and the departments come up with a new machine for stubble burning. Nobody's asking, holding anybody accountable. What are these machines for? The point I'm trying to make is, yes, farmers need machine. There is no denying it. Yes, farmers need an incentive. When the farmers are saying, हम इसको कर देंगे, हमें दीजिए, ना तो सरकार कर सकती है, ना private sector कर सकता, तो दिक्कत कहाँ है? Then you will say, no, we don't have that kind of money. आपके पास 15 लाख करोड़ रुपए हैं to give write off the corporate bad loans. लेकिन आपके पास पैसे नहीं है किसानों को देने के लिए. Then if you look at it, जो आपने willful defaulters हैं, उनका 100 करोड़ रुपया हर साल ऐड होता है, and yet there is no action taken on that. 3,50,000 करोड़ के आसपास जो है willful defaulter का, वो भी एक तरीके का राइट ऑफ किया गया, they asking वो banks to compromise. लेकिन आपके पास कॉर्पोरेट्स के लिए पैसा है, लेकिन आपके पास किसानों के लिए पैसा नहीं. मुझे नहीं समझ आता कि हमें इतनी नफरत क्यों है किसानों से कि हम उनकी मदद नहीं करना चाहते हैं. And believe me, farmer is the first victim of farm. उसकी फैमिली सफर करती है, वो भी जानता है कि कितना हानि. Exactly. Yes. वो नहीं चाहता कि दिल्ली के लोग उसके करके दुखी और हम भी नहीं चाहते कि दिल्ली के लोग. लेकिन दिल्ली के लोग जो हैं, मैं जो आम जनता को देखता हूँ सोशल मीडिया पर और इवन ऑन द टेलीविजन, आई फील वेरी सैड कि क्यों आपका इतना कंटेम्प्ट है टुवर्ड्स फार्मर्स. व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड कि फार्मर की मजबूरी है, आइए समझिए, हेल्प हिम, स्टैंड विद हिम. That is what the nation needs now, not this kind of thing. हर एसएचओ को, एक मिनट सुनिए, हर एसएचओ को बोला जाएगा कि वो कंट्रोल करेगा. What is this? The biggest contributor of Delhi pollution is the SUV cars. I would like SUV cars to be banned in Delhi, but will anybody do that? Will the chief minister go back to Wagon-R car? Will the judges stop going in the SUVs? The point I'm trying to make is, अब दुनिया की रिपोर्ट देख लीजिए, कहती है कि SUV कार अगर एक नेशन होता तो आज 7th रैंकिंग होनी थी उसकी ग्लोबल कार्बन एमिशंस में. तो कोई नहीं बात करता कि उसको बंद किया जाए. My point is only कि why it is always the farmer who's the easy target. Okay. Let me get in another point of view and see if there is another point of view to this. Vijay Sardana, the argument that Devendra Sharma is making is that the farmers are ready to take the responsibility. The government, this is the central government, needs to support Punjab, and that support in terms of money hasn't come, which is why year after year after year, we are seeing stubble burning, November pain, and the fire and fury every November. किसान की गलती नहीं है, सरकार की गलती है. सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार. देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, ये पैसे से दूर होने वाली नहीं है. आप इस बार 100 रुपए देंगे, अगली बार यही किसान आएगा, कहेगा जी लेबर की महंगाई बढ़ गई, लेबर के रेट बढ़ गए, इसको 150 कर दो, फिर 3 साल बाद इसको 400 कर दो. ये प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व होने वाली नहीं है. इस बात को हमें समझना होगा. आप जितना इंसेंटिव देंगे, यू विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ. हमने हर जगह देखा है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, किसान हो, व्यापारी वर्ग हो, एक्सपोर्टर हो, जहां आपने कैश इंसेंटिव देना शुरू किया, वो इंसेंटिव बढ़ता जाएगा, डिस्टॉर्शन बढ़ता जाएगा और आपके पास फिर कोई रास्ता नहीं है. पहली बात. अब रही बात की प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम पैडी अपने आप में है. आप पॉल्यूशन को छोड़िए, पैडी की लाइफ साइकिल देखिए और पंजाब के लिए कितना खतरनाक पैडी हो गया है. पंजाब की वाटर टेबल ऑन एन एवरेज 1 फुट पर महीना नीचे जा रही है. पंजाब के बड़े बड़े एक्सपर्ट और सेंसिबल किसान नेता बोलते हैं कि 5 साल में जो पंजाब है वो बंजर हो जाएगा या रेगिस्तान हो जाएगा. तो आपको पैडी से हटना होगा. पराली उसकी एक और प्रॉब्लम है. अब सवाल ये है कि किसान पैडी क्यों उगाता है. सीधी सी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी को देखते. किसान को लगता है कि इसमें पैसा है, जमीन से पानी निकाला, फ्री की बिजली मिलती है, बिजली की सब्सिडी है, पूरा आप पानी जमीन से निकाल के पैडी में डाल दीजिए, एफसीआई को हम हड़ताल करके खरीदवा लेंगे,
एफसीआई की मजबूरी है खरीदना, हमें कुछ नहीं करना, फ्री में पानी मिल गया, फ्री में बाजार मिल गया तो दिमाग क्यों लगाना है। और रही बात बीच में जो पराली बच जाती है, उसको अगर मैं ठीक करूंगा तो उसके लिए मुझे या तो ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा या लेबर लगानी पड़ेगी, दोनों में खर्चा है। जलाना सबसे आसान है, एक माचिस की तीली लगाओ और काम खत्म, 5 रुपए में वो काम हो जाता। कहने का मतलब ये कि आपको इसकी इकोनॉमिक्स को समझना होगा, इसके लॉजिक को समझना होगा। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस रियलिटी को नहीं समझा। हम अभी भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिबेट में घुसे हुए हैं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। सुप्रीम कोर्ट के कल जो एनालिसिस हुए थे उस पर मैंने पूरा अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया, डिटेल में उसके आंसर देख सकते हैं। दूसरी बात, आंसर बहुत सिंपल है, किसान को चाहिए पैसा। मैं 3 सुझाव आपके माध्यम से देश के सुप्रीम कोर्ट और मंत्री और किसान भाइयों से कहना चाहूंगा। आज हम 70% तेल आयात कर रहे हैं इस देश में, खाने का तेल। पंजाब में बहुत अच्छा सरसों होता है, पंजाब में बाकी तिलहन भी हो सकते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को मैंडेट देना चाहिए कि पंजाब की एग्रीकल्चर में जो तिलहन हो उस पर रिसर्च करे। कहने का मतलब है कि $15 बिलियन का मैं तेल आयात करता हूं, आप उस पे 20% 30% कस्टम ड्यूटी लगाइए। उससे क्या होगा, आपको 5 से 10 हजार करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी का मिलेगा। वो पैसा आप पंजाब के अंदर पैडी को हटा के ऑयल सीड प्रमोशन में लगाइए, और जो ऑयल सीड प्रोडक्शन होगा आप उसको खरीदिए थ्रू एफसीआई। कहने का मतलब देश का आयात कम होगा, किसान को अल्टरनेट क्रॉप मिलेगी, पैडी की प्रॉब्लम और वाटर टेबल की प्रॉब्लम दोनों खत्म होगी। पहला आंसर। दूसरा, हिंदुस्तान में 40 से 60% तक चारा शॉर्टेज में है डेयरी सेक्टर में। पंजाब में चारा बहुत अच्छा होता है। चारा और साइलेज की अगर हम इकोनॉमी को ढंग से स्टैब्लिश करें, चारा और साइलेज का मार्केट स्टैब्लिश करें थ्रू एपीएमसी नेटवर्क, आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। फॉडर इज मोर प्रॉफिटेबल देन पैडी। कोई भी इकोनॉमिस्ट होगा, आई कैन डिस्कस विद दैट। सेकंड आंसर। थर्ड आंसर इज अगेन पल्सेस। आप पल्स प्रोडक्शन में फोकस करिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने एक भी ढंग का बीज नहीं बनाया है जिससे पल्सेस की प्रोडक्टिविटी बढ़े। हमारी रिसर्च क्या कर रही है, प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि हमारी रिसर्च, हमारा बीज लेके लोग ब्राजील गए, कनाडा गए, अफ्रीका गए, हमसे दुगनी तिगनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं बैठे। कहने का मतलब यह है कि पल्सेस इज थर्ड क्रॉप। तीनों इस देश की जरूरत है। तीनों किसान, जो पंजाब का किसान है उसको पैडी से ज्यादा प्रॉफिट देगा, आपकी वाटर टेबल को एड्रेस करेगा, आपके पॉल्यूशन का एड्रेस करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सब्सिडी इज नॉट एन आंसर। ऑलराइट, अभिमन्यु, 2 लोग हैं इस पैनल पे, आप और देवेंद्र शर्मा जी, जो बात कर रहे हैं सब्सिडी की। लेकिन विजय जी कह रहे हैं सब्सिडीज सिंपली विल नॉट वर्क। सब्सिडी रख लेंगे किसान, फिर सबसे आसान चीज जो होती है, आपने 3 रुपए का माचिस खरीदा और आपने लगा दी आग। सब्सिडी भी रख ली, हर साल एक तो आप सब्सिडी ज्यादा मांगेंगे, आज 100 रुपए मांगी तो कल 200 रुपए मांगेंगे, और फिर अल्टीमेटली होगा कि फार्म फायर्स तो फिर भी लगेंगी, बिकॉज दिस इज द चीपेस्ट वे टू डील विद स्टबल बर्निंग। तो इलाज सब्सिडी नहीं है, इलाज ये है कि आप पैडी यानी राइस को ना उगाएं पंजाब में, उसकी जगह दाल उगाएं, उसकी जगह ऑयल सीड्स उगाएं, उसकी जगह फॉडर उगाएं। क्या पंजाब के किसान ये करने को तैयार हैं? पैडी को छोड़कर ये 3 क्रॉप्स या कोई भी अदर क्रॉप जो है, ऑल्टरनेट क्रॉप है, उसको उगाने को तैयार हैं क्या? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। विजय जी हमसे बड़े हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन विजय जी ने जो कहा ना कि इंसेंटिव देने से समाधान नहीं होगा, मैं इनको एक एग्जांपल देता हूं। पिछले 2-3 साल से हरे चारे की काफी कमी है, क्योंकि मक्का है, जिसको फोडर बोल देते हैं अंग्रेजी में, जो मक्का है या जवार है, उनमें कीड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है। तो जो हरियाणा का एरिया जो यूपी को टच करता है, इस एरिया में सूखे चारे की यानी पराली की डिमांड बहुत बढ़ी हुई है।
तो हमारी हार्वेस्टिंग शुरू होने से पहले ही यूपी से व्यापारी भाई आते हैं और वो पहले ही फाइनलाइज कर लेते हैं कि हम 1 एकड़ की पराल है उसके हम आपको 8,000 रुपए दे रहे हैं। जो अभी 11-21 वैरायटी है उसकी तो 10 से 12,000 रुपए में 1 एकड़ की पराली बिक रही है। उसमें क्या होता है, वो 12,000 की जब उसकी पराली बिकती है तो हाथ से कटाने का मजदूरों का खर्चा भी किसान का निकल जाता है और उसके बाद उसको कुछ पैसे भी बच जाते हैं। तो किसान को जब इकोनॉमिक फायदा हुआ, क्योंकि सूखे चारे की कमी है यूपी में, तो यूपी से व्यापारी जब पराल के अच्छे पैसे देता है तो अपने आप ही पराली जलाने के केसेस बहुत कम हो गए। पराली तो बिक गई ना 10 से 12,000 में। जो चीज 10 से 12,000 में बिकेगी उसको जलाएगा कौन? नहीं, पहली लेकिन बात। अभिमन्यु, दूसरी बात, आपने कहा कि इसको क्या हम दूसरी क्रॉप्स उगा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2020 में जब कोविड आया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि मलेशिया और इंडोनेशिया से जो हम पाम ऑयल का इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट अपने आप बंद हो गया। वो इंपोर्ट बहुत कम आ गया। तो इंपोर्ट कम आने के कारण क्या हुआ कि हमारे देश में सरसों की कीमत है वो अच्छी हो गई। किसान का जो सरसों थी वो एमएसपी से भी ऊपर बिकने लगी और 7,000 रुपया प्रति क्विंटल तक बिकी। ऑटोमेटिक नेक्स्ट ईयर, क्योंकि सरसों रबी सीजन की क्रॉप है और पैडी खरीफ की क्रॉप है, तो अगले साल ऑटोमेटिक हरियाणा की अगर बात करें और पंजाब की भी बात करें तो लगभग 10 से 15% एरिया बढ़ गया सरसों की कल्टीवेशन का। नेक्स्ट ईयर 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो यूक्रेन से जो इंपोर्ट होता था सरसों वो भी बंद हो गया। तो नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिक और भी ज्यादा सरसों की कल्टीवेशन बढ़ गई। लेकिन अगले साल क्या हुआ कि जो भी पिछला सीजन गया, सरकार ने दोबारा से पाम ऑयल का इंपोर्ट शुरू कर दिया। पाम ऑयल का इंपोर्ट ज्यादा होते ही उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, तो ऑटोमेटिक सरसों की डिमांड है वो यहाँ पे कम होगी। और जो एक साल पहले 7,000 रुपया क्विंटल तक सरसों बिक रहा था वो एमएसपी से भी नीचे 4,500 रुपया क्विंटल में बिकने लग गया। किसान को एमएसपी भी नहीं मिला। अगर आप एक और बात करें, बाजरा की फसल है खरीफ सीजन की, आप हरियाणा की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, आप कहते हैं कि पैडी मत उगाइए, आप दूसरी क्रॉप उगाइए। चलिए हम बाजरा उगा लेते हैं। आप मुझे बताइए बाजरा की एमएसपी पे खरीद कहां पे हो रही है? चाहे आप बात हरियाणा की कर लीजिए या बात आप पंजाब की कर लीजिए या बात आप उत्तर प्रदेश की कर लीजिए, मुझे आप एक भी मंडी का नाम बता दीजिए। मैं विजय जी आपसे जानना चाह रहा हूं, एक भी मंडी का नाम बता दीजिए जहां पे बाजरे की खरीद एमएसपी पे हुई हो। आप एक भी बता दीजिए, हम आपके कहने पे बाजरा उगाना शुरू कर देंगे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अच्छी बात है, हम भी सहमत है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल तब है जब अन्य फसलों की भी एमएसपी पे प्रोक्यूरमेंट होगी। जब किसानों को अन्य फसलों पे भी एमएसपी मिलेगा, किसान अपने आप ही क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन कर लेगा। Okay. Okay. Okay, you know, it was important to hear from the farmers of Punjab because they are made the #1 villains of Delhi and NCR's November pains. You've heard from them. You've heard from both sides of the divide. You've heard from one side of the divide that says that the central government needs to give subsidies to Punjab's farmers to ensure that we don't see the sort of pictures we are seeing on our screens. We don't see this stubble burning that chokes up Delhi's air. There is another point of view as well. How long will you keep giving subsidies? Subsidies are really not the solution. The solution is crop diversification. But the farmer says crop diversification is a great idea. But by the end of it, please tell us, if we grow millets like bajra, who will buy it? This is a nuanced, complicated debate. We thought it was important to understand the point of view that is coming in from Punjab as well. Ladies and gentlemen, thank you. Thank you very much for listening to us. Thank you, Abhimanyu, for listening to us. Devendra ji, thank you very much. And Vijay Sardana ji, thank you very much for joining us as well. Thank you very much. On that note, I'm slipping into a very quick break on the show. There's much more on the other side. Do stay with us.